Now I'll share my screen. And okay, so 16th chapter, light. Light is a kind of wave. See, we have done the chapter called sound. जैसे साउंड एक वेव होता है वैसे लाइट भी एक वेव है. बट द डिफरेंस इन साउंड इज sound needs a medium to travel, but light does not need a medium to travel. And not needing a medium means it can travel through vacuum, और स्पेस में वैक्यूम है. So the sun is millions of kilometers away from us, and this is the earth. सन से अर्थ तक लाइट पहुंच सकती है. वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है. लाइट कैन ट्रैवल इन एटमॉस्फेयर ऑल्सो. लाइट कैन ट्रैवल इनसाइड liquid, water, etc. My first question is, can light travel through solids? What do you think? No, sir. No. Yes or no? No, sir. No. No. जो ट्रांसपेरेंट है तो अर्थ ही होता है. Exactly. So answer is yes and no both. Light as such cannot travel through a solid. So light cannot travel through solid, no. But वो opaque substances के लिए. But if it's a transparent substance, then light can travel through solids also. Alright, the first slide. What makes things visible? तुमको तुम्हारे आसपास की दुनिया दिखती कैसे? It is all because of reflection of light, which I'll explain in a second. First, read the summary. When light gets reflected from an object and enters our eyes, only then we can see that object. So, right now you are able to look at your laptop, computer, or mobile phones because the light from the sun, दिन है, ये दिन का उजाला है सबके रूम में, और या फिर किसी किसी रूम में तुम लोग ने लाइट चालू करके रखी होगी. सो वेदर इट इज सनलाइट और light coming from a bulb or a tube light, the light is bouncing from an object and then you can see that object. Can you see this calculator? Yes, sir. Yes, because मेरे रूम में लाइट है, सनलाइट भी है और आर्टिफिशियल बल्ब की लाइट भी है, और वो लाइट ये कैलकुलेटर पर गिर रही है, एंड फ्रॉम द कैलकुलेटर इट्स फॉलिंग ऑन द कैमरा, और कैमरा के थ्रू तुमको दिख रहा है. सो एक सेकेंड के लिए ऐसा इमेजिन करो कि तुम जूम क्लास में नहीं, तुम लाइव लेक्चर में हो और मैंने ऐसे सामने कैलकुलेटर पकड़ा है तो तुम्हें कैलकुलेटर दिख रहा है, बिकॉज द लाइट is hitting the calculator and then falling into your eyes. But can you see my face now? No. No, sir. Why? मेरे रूम में अभी भी लाइट है, मेरे चेहरे पे वो लाइट गिर रही है, बट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम माई फेस is not falling in your eyes. But now you can see me again. So the basic rule to see things is reflected light should reach our eyes. बिना ऐसे ऐसे किए रूम के पीछे क्या है वो दिखेगा कभी जिंदगी में? इम्पॉसिबल. पीछे की तरफ बहुत सारी चीजें हैं बट वो कुछ नहीं दिखता. डज इट मीन दे डू नॉट एग्जिस्ट? नो, दे डू एग्जिस्ट, बट यू आर नॉट एबल टू सी इट. Who can give me the reason why can't we see it? Why are we not able to see things at the back without turning?
Any answers? No? क्या हुआ, जूम कॉल अटक गया क्या? सब लोग हो? यस सर। ओके. सर मेरा क्या हुआ? वापस बोलो, क्या हुआ? હવે પાછળની વસ્તુ તો ન જ દેખાય, એનું સાયન્ટિફિક રીઝન શું છે? ધ સાયન્ટિફિક રીઝન ઇઝ light travels only in a straight line. So this is the person who is facing in this particular direction. उसके सामने एक क्रिसमस ट्री है जो उसको दिख रहा है, बट उसके पीछे एक मैंगो ट्री है जो उसे नहीं दिखता. The reason is the light travels only in straight lines. So all the light from the Christmas tree is reaching the eye of the observer, therefore he can see the Christmas tree. But mango tree की जो light है, जब sunlight इस पे गिरती है, तो the reflection is in all directions. Literally every single direction the light is reflected, but that reflected light is reaching the back of your head. और वहाँ पे आँख है ही नहीं. But imagine what will happen if you turn around. Then when you turn around, you will be able to see the mango tree, but then you will not be able to see the Christmas tree. And this knowledge has a very important application in iSpice. iSpice का मुझे स्पेलिंग तो नहीं आता है, आई थिंक आइस पाइस, पता नहीं. हाँ, छुपा छुपी, खबर जन छुपा छुपी जा रहे रमो, क्या बोलते उसको, और कुछ बोलते? हाइड एंड सीक. हाँ, हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक when you are playing, let's say this is a door behind which you are hiding. If you are hiding like this, और जिसका डैन है वो यहां खड़ा है, my first question, can you, okay, this is Mr. X and this is you. My first question is, can you see Mr. X? Yes or no? No. No. Because your eyes are facing in this direction, Mr. X पीछे है. Can Mr. X see you? No. No. But let's say your hand is like this. Now, can Mr. X see your hand? Yes. Yes. Because light तो चारों तरफ है. Light is been reflected from Mr. X's body in all the directions. Light is reflected from your body in all the directions. Mr. X can see only this part of your hand because light from your hand is falling in his eyes. और तुम पकड़े जा सकते हो, लेकिन मिस्टर एक्स का ध्यान होना चाहिए. तो टेक्स्ट बुक में सामने सब होता है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएंगे. वैसे मिस्टर एक्स अगर ध्यान से देखेगा तो उसको ये हाथ दिखेगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड हिज आईज, बट ही स्टिल कैनॉट सी यू. अब तुम्हें अगर मिस्टर एक्स को देखना है तो पीप करना पड़ेगा बाहर. सो कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई स्पाइस का एक बेसिक रूल है कि अगर तुम ऐसे झांक के मिस्टर एक्स को देख सकते हो तो क्या, हु विल कंक्लूड? इफ यू आर एबल टू सी मिस्टर एक्स, देन व्हाट? Then it is 100% sure that Mr. X can also see you. It is very rare
that you can see somebody and that somebody cannot see you. The light travels in a straight line. Please mute. कहाँ है mute all participants? So if you can see somebody, somebody can definitely see you, because it's a straight line and light always travels in a straight line. Let's read what the textbook says. Have you ever thought how we could see various objects? You may say that eyes see the objects, but can you see an object in the dark? Complete अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है. What is the reason? Why you cannot see anything in dark? साइंटिफिक आंसर क्या है? सर क्योंकि लाइट नहीं है उसमें. लाइट नहीं है. तो यहाँ पे एक घड़ी है, घड़ी में 4 बजे है, लेकिन तुमको ये घड़ी नहीं दिखेगी क्योंकि रूम के अंदर लाइट है ही नहीं. और रूम में अगर लाइट नहीं है तो वो लाइट क्लॉक पे गिरेगी नहीं, और अगर लाइट क्लॉक पे गिरेगी नहीं तो क्लॉक से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो कुछ दिखेगा नहीं. बट अगर रूम की ट्यूबलाइट को ऑन करोगे, सो ट्यूबलाइट गिव्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. फ्रॉम दैट लिटिल बिट ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द क्लॉक, and from the clock it falls into your eyes, and therefore you can see when the tube light is on. And in a dark room you are not able to see because उसमें light है ही नहीं. It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see. देखने के लिए आंखें चाहिए, बराबर है, बट साथ में लाइट चाहिए. विदाउट लाइट, भले तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम देख नहीं सकते. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. So there are two cases when you can see things. Butterfly देखने के लिए एक्सटर्नल लाइट चाहिए, मतलब बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए या सनलाइट चाहिए. बट ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसको देखने के लिए बल्ब, ट्यूबलाइट और सनलाइट कुछ नहीं चाहिए? सर जुगनू नहीं क्या? एग्जैक्टली, जुगनू या फायरफ्लाई. जुगनू और फायरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर से लाइट क्रिएट होती है. उसकी पूंछ में से लाइट आती है तो वो अपने आप दिख जाता है. सोलर सिस्टम तुमने पढ़ा है, तो सोलर सिस्टम में किस चीज को मैं बटरफ्लाई के साथ कंपेयर कर सकता हूं जिसको देखने के लिए बल्ब, ट्यूबलाइट या सन चाहिए? थिंक एंड टेल मी. व्हाट इन आवर स्पेस? अर्थ. अर्थ पे तो हम है. अर्थ इज नॉट द आंसर. सर मून. Moon. If you want to see the moon, you need the sunlight to hit the moon and then fall into your eyes. Or all the planets. All the planets and the moon are like butterfly. You cannot see them in dark. You need the sunlight to fall on them, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके तुमको ये दोनों दिखेंगे. तो जुगनू जैसा कौन है? द सन itself. सन को देखने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है. लेकिन एक और चीज है, वन मोर थिंग, all the stars. Exactly, all the stars are like जुगनू. they have their own light. So जिसके पास खुद की लाइट है वो तो ऐसे ही दिख जाता है, और बाकियों को एक्सटर्नल लाइट चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट होके वो दिखे. फाइन, और कुछ नहीं इंट्रोडक्शन में. नाउ वी कम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी अनुज ने कहा उसकी क्रिकेट मैच है तो वो क्रिकेट खेलने जाएगा. हाँ, मेरी नहीं धन की है. सॉरी, धन की है. हाँ, तो क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, एनी गेम विच यू प्ले विथ अ बॉल, उसमें एक स्किल चाहिए. क्यों ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए जाते हैं? बिकॉज
you require skill. Now I will ask one basic question. किसका एग्जाम्पल ले? लॉन टेनिस. लॉन टेनिस का एग्जाम्पल, एक आदमी ने, ये वेरी बैड ड्राइंग, रैकेट लेके बॉल को हिट किया एंड द बॉल इज बीन हिट इन दिस डायरेक्शन. बॉल को जोर से मारा इस डायरेक्शन में एट पॉइंट ए. You have to guess in which direction will the ball move. Will it be X, Y or Z? Sir, why? Why? Y. और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का बेसिक स्किल है. If you want to become a good sports person, you have to guess where the ball will go after hitting the ground. And there is a specific law. क्यों X और क्यों Z नहीं? The law or scientific reason is this कि X not possible, Z not possible. ये बॉल Y डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास एक सरफेस है, a flat surface. On the flat surface, the place where the ball hits, वहां से एक इमेजिनरी 90 डिग्री लाइन इमेजिन कर. एक खंबा इमेजिनरी, वो है नहीं. एंड देन थिंक अबाउट कि ये एंगल कितना है. यू सी द बॉल एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. तो इमेजिनरी लाइन नॉर्मल के साथ बॉल का हिटिंग वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो द बॉल हैज टू कम आउट एट अप्रोक्सीमेटली द सेम एंगल. ये थोड़ा कम है बट इट विल कम आउट एट 30 डिग्री. इट कैनॉट कम आउट फ्रॉम हियर बिकॉज वो 30 से ज्यादा एंगल हो जाएगा. द बॉल कैनॉट कम आउट फ्रॉम हियर बिकॉज वो 30 से कम हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Once again, do you know what is squash? It's a sport. पता है? नहीं? किसी को नहीं पता? Very bad. Squash is a wonderful sport जिसमें एक बंद रूम होता है और ये क्रेजी बॉल होता है ना, रबर का, वेरी फास्ट मूविंग बॉल, वो और दो प्लेयर रैकेट्स के साथ, तो टेबल टेनिस के रैकेट्स होते हैं और क्रेजी बॉल के साथ खेलते हैं. एंड दे आर अलाउड टू हिट एनीवेयर, एनी वॉल, इवन द सीलिंग, कहीं पे भी मारो. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड यू शुड सी ऑन यूट्यूब व्हाट इज स्क्वाश. एंड स्क्वाश में सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए होता है टू गेस वेयर द बॉल विल हिट. लेट मी टेक योर टेस्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं एक्चुअली ये एक्टिविटी कराता हूँ नॉर्मल क्लासरूम में. इट्स लाइक अ गेम बट फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता. तो ये वॉल पे, इस पोजीशन पे बॉल हिट हुआ है. विल द बॉल गो इन X, Y और Z डायरेक्शन? टेल मी. Why? 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 X. Why? 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 All answers are wrong. रीजन, सारे आंसर गलत है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है बॉल हिट कहां से कर रहा है. तो बेसिक बॉल कहां से आ रहा है उसके ऊपर से गैस होता है कि वो कहां जाएगा. तो वो Z को जाएगा, X को जाएगा या Y को जाएगा. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि वो आया कहां से था. तो अब मैं ये बताता हूं कि वो कहां से आया था बाय ड्रॉइंग अ ब्लू लाइन. इट केम फ्रॉम हियर. नाउ कैन यू टेल मी, will it go in X, Y or Z?
Z. तो this is called reflection of a ball, and the same law, same rule applies to reflection of light also, कि लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होगी वो इसी सेम लॉजिक से गैस कर सकते हैं कि द लाइट विल गो टुवर्ड्स Z, और उसका रीजन ये है कि सरफेस है ये वॉल, दिस वॉल इज द सरफेस, तो ये वॉल पे जहां पे बॉल हिट कर रहा है वहां से एक 90 डिग्री नॉर्मल बनाओ, परपेंडिकुलर, दिस इज द वॉल, दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड द एंगल एट विच द बॉल हिट्स, द सेम एंगल इट विल कम आउट. But the scenario changes in this particular case. हमेशा हर एक जन को एक फ्लैट ग्राउंड नहीं मिलता खेलने के लिए, तो कभी कभी ग्राउंड ऐसा होता है uneven, but still you are playing with the ball. Now the ball hits from this direction, it is, I'll not even ask you, I'll tell you कि ये बॉल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द सरफेस इज अनइवन, और अनइवन सरफेस पे तुमको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि तुम बॉल को हिट करते हो तो कहीं भी जा सकता है. दैट्स वाई every single sport is always played on a flat ground. Think about it. There is science in everything. Kabaddi, cricket, football, table tennis का table, lawn tennis, everywhere you need flat ground. कोई एक्सेप्शन दिमाग में आता है जहां पे फ्लैट ग्राउंड ना हो तो भी चलता है, तुम परफेक्टली खेल सकते हो और जीत सकते हो. वॉलीबॉल. यस, सुपर. जो मुझे नहीं आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में ये स्पोर्ट नहीं था. वॉलीबॉल इज अ स्पोर्ट जिसमें ग्राउंड अनइवन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वॉलीबॉल में ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है. द बॉल इज नॉट सपोज टू टच द ग्राउंड. तो वॉलीबॉल इज बिटवीन द प्लेयर्स, फ्रॉम वन प्लेयर टू द अनदर, अनदर टू दिस, एंड देन यू गो बैक. वेरी गुड. और एक एग्जाम्पल सोचो. बैडमिंटन. बैडमिंटन जिसमें शटल कॉक ऊपर नीचे होता है, लेकिन बैडमिंटन में एक फ्लैट सरफेस जरूरी है. कौन सी? जहां पे हम खड़े हैं. नहीं, द सरफेस ऑफ द रैकेट. अगर तुम्हारा रैकेट फ्लैट नहीं है और उबड़ खाबड़ है तो तुम मारोगे ईस्ट में, वो जाएगा वेस्ट में. अग्री? That brings me to the second thing, that imagine a tennis racket, imagine a badminton racket, imagine a cricket bat, they are always flat. कभी उबड़ खाबड़ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखा है? नहीं. Because everywhere this law of reflection comes into picture, कि बॉल यहां से आ रहा है तो फ्लैट सरफेस पे यहां जाएगा, और ये लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल. टेनिस में भी वही होता है, बैडमिंटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गुड. वॉलीबॉल. गोल्फ. गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लिटरली बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मतलब ऐसे माउंट्स होते हैं, और तुम कहीं से भी हिट करो कहीं भी जाएगा बॉल, बिकॉज इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू एयर. तो उसमें ग्राउंड उबड़ खाबड़ हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. एनीवेज, कमिंग बैक टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes any surface is called incident ray. First, one line question. What is incident ray? The light
which strikes a surface. ये एक मिरर है, नॉर्मल मिरर. और मिरर में साइंस के अंदर ओके ગેસ આ મિરર છે નોર્મલ અરીસો. મારે માથું ઓળવું છે. અરીસામાં જોઈને આઈ વોન્ટ ટુ કોમ્બ માય હેર. વેર શુડ આઈ સ્ટેન્ડ? શુડ આઈ સ્ટેન્ડ એટ પોઈન્ટ A and look at the mirror, or should I stand at point B and look at the mirror? सर पॉइंट बी. पॉइंट B. क्यों पॉइंट A पे खड़े रहूंगा तो क्या दिखेगा? सर उसके बैक की साइड. एग्जैक्टली. मिरर की बैक साइड ऑरेंज या ग्रे या ऐसा कोई कलर होता है जो रिफ्लेक्टिव नहीं होता. सो आई कैनॉट स्टैंड एट A, आई हैव टू स्टैंड एट B. इसका मतलब साइंस ने डिसाइड किया है कुछ तो, बट वो तुम्हें खुद समझ में आया कि नहीं, वो ये सेकेंड टेस्ट से पता चलेगा. दिस इज अ स्टैंडिंग मिरर. और साइंस में मिरर हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं. नाउ टेल मी, टू कोम्ब माई हेयर शुड आई स्टैंड एट पॉइंट A और B? सर पॉइंट ए. पॉइंट A. पॉइंट A पे खड़े खड़े मैं खुद को देख सकता हूं, B पे नहीं. तो क्या समझ में आया? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इन साइंस, और ये 9th-10th में आएगा इसलिए बता रहा हूं. इन साइंस whenever you are showing a mirror, तो मिरर होता तो फ्लैट है, बट कौन सी शाइनी सरफेस है और कौन सी शाइनी सरफेस नहीं है वो दिखाने के लिए ऐसे लाइंस करनी पड़ती. तो जिस तरफ लाइंस है इट इज द रफ सरफेस और नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस इन साइंस, which means this is the shiny side. Now coming back to the topic, incident ray. Incident ray is that ray of light which started from a torch. कहीं से तो शुरू होगा, या सन से या टॉर्च से. तो टॉर्च में से लाइट ने अपना जर्नी शुरू किया and it hit a particular point on the mirror, and that ray, ज्योमेट्री में जो सीधा सीधा जाता है उसको रे बोलते हैं, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. अब प्रेडिक्शन करना है कि ये इंसिडेंट रे बाउंस होके जाएगा कहां. टू प्रेडिक्ट दैट प्रॉपरली, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर प्रेडिक्शन के लिए? नॉर्मल. नॉर्मल. तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कहाँ है, और नॉर्मल इमेजिनरी होता है and it is always 90 degree to the surface of the mirror. So if this is the mirror, this is the normal. T formation होता. नॉर्मल के बाद ये एंगल का मेजरमेंट होता है. दिस एंगल is called angle I. Can you guess I stands for what? इंसिडेंट रे. Exactly. Incidence. Angle of इंसिडेंस मतलब लाइट का गिरने का एंगल. किस एंगल पे लाइट इज फॉलिंग ऑन द मिरर. एंड आफ्टर वी नो व्हाट इज दैट एंगल, कोई भी नंबर, सपोज ये 20.5 डिग्री एंगल है, तो अब हम विदाउट डूइंग द एक्सपेरिमेंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं दैट द लाइट विल कम आउट फ्रॉम हियर ओनली. Why? Because this angle R also has to be 20.5 degree. Then tell me, what is R stand for? रिफ्लेक्टेड रे. Reflected ray नहीं, छोटा r stands for angle of reflection. So I is angle of incidence, R is angle of reflection, and it is a universal rule जो कोई ब्रेक नहीं कर सकता, that angle of incidence I is always equal to angle of reflection R. ये दोनों एंगल हमेशा सेम रहते. सरफेस सीधी हो
या अनइवन, दिस ऑलवेज रिमेन्स सेम। और जो रे बाहर निकला उसको हम बुलाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रे इज अ लाइन एंड एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। एनी क्वेश्चंस? लुक एट दिस सिमुलेशन। ये मेरी टॉर्च है और ये टॉर्च को मैं ऑन करता हूं। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज एयर, ऊपर हवा है। दिस इज वाटर, नीचे पानी। जो नॉर्मल रूटीन लाइफ, स्विमिंग पूल, लेक, पॉन्ड, सी, रिवर। ऊपर हवा है, नीचे पानी है, एंड यू आर हिटिंग द टॉर्च इन दिस डायरेक्शन। ये दो रेज दिख रहे, एक डार्क एक लाइट। हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग हियर? गेस। Light is reflecting. So if I say okay, the point where the light hits is O, this direction is A, this direction is B, and ये C है। तो इसमें इंसिडेंट रे कौन सा है? इंसिडेंट रे। What is the answer? It is ray CO, जहां से लाइट ने अपनी जर्नी शुरू की। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? एनी गेस? OA, जहां राइट रिफ्लेक्ट हुई। नॉर्मल कहां है? नहीं, ओ भी नहीं। अब वापस एक बार, नॉर्मल क्या होता है? जो भी सरफेस है जिस पे तुम लाइट को फेंक रहे हो, जो भी पॉइंट पे टच करती है विच इज ओ, वहां से एक इमेजिनरी 90 डिग्री लाइन अज्यूम करनी है। एंड बिकॉज इट इज इमेजिनरी, इसलिए उसको डॉटेड लाइन दिखाया है। तो ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल है। NO या N डैश, जो नाम देना है वो, बट दिस इज द नॉर्मल NO। एंड नाउ आई विल शो यू द ट्रूथ के नॉर्मल ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो डू यू सी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एनी क्वेश्चंस? अब मैं ये लाइट को हिला रहा हूं। फिलहाल ओनली लुक एट एयर। नीचे पानी में क्या हो रहा है वो बाद में देखेंगे। हवा को देखो। कैन यू सी द लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर सेम। अब एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। ये क्या है? नीचे क्या, नीचे डार्क क्यों है? Who can explain this? नीचे डार्क क्यों है? No? The reason is water is transparent. So when 100% light is falling on the surface of water, ये रहा surface of water. Water is transparent. It allows the light to enter. तो 90% लाइट अंदर चली जाती। और ये लाइट क्यों है?
क्योंकि ओनली 10% लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक. It is very easy to put on makeup in front of a mirror. मिरर के सामने बैठे बैठे एक लेडी मेकअप कर रही है बिकॉज शी कैन क्लियरली सी हर सेल्फ इन द मिरर. इज इट पॉसिबल टू डू मेकअप by looking at your reflection in a pond or a lake or swimming pool? Yes, sir. स्विमिंग पूल में देख के मेकअप कर सकते हो? कर तो सकते हो, लेकिन वो मेकअप का रिजल्ट भयानक हो सकता है. रीजन इज यू आर ओनली लुकिंग एट 10% ऑफ योर रिफ्लेक्शन, विच इज नॉट इनफ. अच्छा, हैव यू सीन माउंटेन्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन अ सरफेस ऑफ अ लेक? तो ये लेक है, ऊपर की तरफ माउंटेन्स है और नीचे की तरफ उसका रिफ्लेक्शन होता है. बट द रिफ्लेक्शन इज नॉट 100%, इट इज जस्ट 10%. तो ऊपर देखोगे तो क्लियर माउंटेन्स देखेंगे, फुल कलर, ब्लू, ग्रीन, वॉट एवर इट इज. बट रिफ्लेक्टेड में कलर फेड हो जाता है. एनी क्वेश्चंस? क्योंकि थोड़ी सी लाइट पानी के अंदर चली जाती. व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू सी 100% सेम माउंटेन्स रिफ्लेक्शन ऑन द लोअर साइड? क्या करना चाहिए? लेक पॉन्ड में तो 10% दिखता है. मुझे एग्जैक्ट सेम माउंटेन्स देखने हैं तो क्या करूं? नो आइडिया? वेरी सिंपल. टेक अ फ्लैट मिरर एंड होल्ड इट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ योर आईज. तो माउंटेन्स और उसका रिफ्लेक्शन तुमको दिखेगा. तो अगर ये मिरर है तो 100% रिफ्लेक्शन, बट अगर ये लेक है तो ओनली 10% रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट अंदर चली जाती. मिरर के अंदर लाइट जा सकती है? No, sir. नो. No. आई डिड अ चेंज इन दिस सिस्टम. ये लाइन के ऊपर हवा है और नीचे भी हवा है. तो ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अब ऊपर भी हवा, नीचे भी हवा. तो सर रिफ्लेक्शन नहीं होगा. एग्जैक्टली. इसमें कोई सरफेस ही नहीं है. लाइट ने अपना जर्नी हवा में शुरू किया और हवा में चला गया, तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है. देयरफॉर द लाइन इज गोइंग स्ट्रेट. बट ये है ग्लास, इसको कस्टम करें. एनीवेज, इसमें क्या है? लाइट इज अ वेव, और ये वेव हवा से ग्लास की तरफ जा रहा है. एंड ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, so most of the light is entering and some of the light is reflected. Angle, ये देखो, if you hit the light straight तो reflection मिलेगा ही नहीं. But if you create a little angle, then some amount is reflected. More angle, more reflection. More angle, more reflection. अब ये नीचे जो हो रहा है ना, वो 9th स्टैंडर्ड में आएगा. बट आई टेल यू द वर्ड what it is called and then go back to the textbook. इस रे का नाम क्या है? तुमको पता होना चाहिए. टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रे?
इंसिडेंट रे। जहां से रोशनी शुरू हुई, इंसिडेंट रे। इस रे का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके चली गई, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये रे का नाम अगर तुम्हें पता है तो यू आर रियली इंटेलिजेंट, योर जनरल नॉलेज इज वेरी गुड। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग ऑफ द लाइट। जैसे बॉल बाउंस होता है वैसे लाइट बाउंस हो रही है, वापस जा रही है। बट रिफ्रैक्शन में बाउंस नहीं, बेंडिंग होता है। द लाइट बेंड्स। कैसे बेंड हो गई देखो, वेरी सिंपल टू इमेजिन। अगर लाइट सीधी चली जाती तो ये डायरेक्शन में जा रही थी समवॉट, हाँ। इफ लाइट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, दिस वॉज द डायरेक्शन, बट इट बेंड्स, and this bending of light is called refraction, and bouncing of the light is called reflection. Any question? Now one simple question: why does refraction happen? ये सब यहीं से निकल रहा है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? Take a wild guess. This is air and this is glass. Any guess? Refraction happens when medium changes. Air to glass. Light was traveling through air. Suddenly glass came and light started to travel in the glass. और क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, लाइट बेंड हो गई। इसका मतलब अगर मैं यहां नीचे एयर कर दूं, एयर टू एयर, हु कैन टेल मी व्हाट विल हैपन? So the reflected ray will go away. There will be no reflection, no refraction also. एयर टू एयर में लाइट बेंड करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है। हवा है, हवा थी, हवा रहेगी। तो एक मीडियम में कभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम स्टडी नहीं कर सकते। सो दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस इज अगेन फ्रॉम द PHET कोलोराडो वेबसाइट। इट इज कॉल्ड बेंडिंग लाइट। तो अगर तुम्हें इससे खेलना है तो यू हैव टू राइट PHET बेंडिंग लाइट। फिर पहला बेंडिंग लाइट स्नेल्स लॉ, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो आएगा, उस पे ये प्ले का बटन दबाना है। एंड वंस यू क्लिक प्ले, it will start automatically. It works best on Chrome on a laptop. When it opens, you will find 3 options to play with: introduction, prisms and more tools. तो अब मैं प्रिज्म दिखाता हूँ। ये लाइट चालू कर दी and now I am moving it in any direction. The light is not reflecting or refracting क्योंकि एक ही मीडियम। बट इसके बीच में मैं एक स्क्वायर कांच का टुकड़ा लेके आता हूं। डू यू सी बेंडिंग ऑफ लाइट? Why does the light bend?
ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। क्यों हुआ? हु कैन टेल मी? Because of the change of medium. एग्जैक्टली। यहां पे था एयर और यहां पे है ग्लास, और एयर टू ग्लास में द लाइट हैज टू कंपल्सरीली बेंड। तो ये जो जा रही थी वो सीधी नहीं, बेंड हो गई, सॉरी। सो इट वेंट ऑन स्ट्रेट एज लॉन्ग एज इट वॉज इन द एयर, और फिर उसने टर्न मारा। लेकिन अब सीधी नहीं निकली, वापस क्यों टर्न मारा? फिर से एयर हो गया। Because the medium changed. एग्जैक्टली। जितनी बार मीडियम चेंज होता है उतनी बार लाइट बेंड होती है, और इसमें कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है। ये देखो, नाउ इट बिकेम कॉम्प्लेक्स। मैंने रिफ्लेक्शंस क्लिक किया तो सडनली इट स्टार्टेड शोइंग रिफ्लेक्शंस ऑल्सो, विच मेक्स थिंग्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, जिसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यू सी हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स। तो ये है O, and this point is A, and this is B. OA is the incident ray, AB is the reflected ray. और नॉर्मल कहाँ है? ये रहा, perpendicular to the surface. तो this is the surface of the glass. This is the perpendicular, which is called normal. This is the angle of incidence. This is angle of reflection. But 100% रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये ग्लास का टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा, इसलिए लाइट अंदर चली जाती। और कहीं पे दिख रहा है ऐसा सेम सेटअप? हाँ या ना? ये रहा, दिस इज द इंसिडेंट रे which is falling on a surface, and this is the reflected ray, and this is the normal. This angle is equal to this angle. और कहीं पे दिख रहा है ऐसा सेटअप? हाँ, तो जितनी भी सरफेसेस है सब पे दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. So all the surfaces are behaving like small mirrors and reflection is taking place. And laws of reflection are very simple. The first law of reflection is angle of incidence and angle of reflection is always same. So we have seen what is incident ray. We know what is a reflected ray. We know what is angle of incidence, I. We know what is angle of reflection, R. लेकिन ये लॉज नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन है. लॉ क्या है? पहला लॉ, पहला या दूसरा जो भी, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है. वन ऑफ द लॉज इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीन रे all lie in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. मतलब वो एक फ्लैट प्लेन के ऊपर तीनों होते हैं. जैसे ये तीन, my 3 fingers are on a same plane. So a single a piece of paper can pass through the 3 fingers. But ध्यान से देखना, ये, do you see a difference? Now these 3 are not in the same plane. तो ये साथ में होने चाहिए और ये 3 रे हमेशा साथ में होते हैं.
ये बाय हार्ट करना है एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड सेकेंड लॉ, angle of incidence is always equal to angle of reflection, which you have observed in the simulation and many times. तो ये दो बाय हार्ट करना है और फिगर आना चाहिए. एनी क्वेश्चंस? हाउ डज अ मिरर वर्क, उसका एक ड्राइंग है, और ये टेक्निकल ड्राइंग्स जितने ज़्यादा समझोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए. दिस इज़ योर आई, यू आर हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर अ लॉट ऑफ लाइट इज फॉलिंग. ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉट ऑफ लाइट इज फॉलिंग, and that falling light is reflected in all directions. But अगर मैं सारी डायरेक्शन की सारी लाइंस ड्रॉ करने लगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, चारों तरफ लाइन 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 होगी. सो व्हाट डू? आई चूज ओनली 2 ray of light coming from the object. One is OA and another is OC. तो बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेज है, बट मैं 2 ड्रॉ कर रहा हूं. OA इज इंसिडेंट रे, जिसका ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे. OA टू AB. OC का ये नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, एंड देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट CD इज द रिफ्लेक्टेड रे. तो ऑब्जेक्ट से बाउंस होके तुम्हारी आंखों में लाइट गई, बट तुम्हारी आंखें बहुत भोली है. योर आईज कैन बी फूल्ड इजीली. Okay, tell me one answer. This is the object. ये एप्पल है, सपोज. ये मिरर है. I call this zone A, which is outside the mirror, and this is zone B, inside the mirror. My question is, where is the apple? Sorry, zone A. Zone A. It's obvious. Apple zone A में है, तुम भी zone A में हो, but your eyes are being fooled. तुम्हारी आंखों को उल्लू बनाया जा रहा है. तुम्हारी आंखों के अंदर जो भी रेज ऑफ लाइट आते हैं, आई एंड द ब्रेन इमेजिन्स कि जहां से रे आया एग्जैक्ट सामने वो चीज है. केयरफुली अंडरस्टैंड, योर आईज आर फुलिश. योर आईज एंड द ब्रेन थिंक्स कि जहां से रे आया एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है. मतलब आंखों के लिए रे कहां से आया? ये है बी और डी. तो आंखों को लगता है एग्जैक्ट सामने उसी डायरेक्शन में एप्पल है, विच इज एक्चुअली फॉल्स. एप्पल जोन बी में नहीं है, जोन बी में उसका रिफ्लेक्शन है. तो तुम्हारी आंखों को रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा? ये 2 लाइंस जहां पे मिलेगी वहां पे. कुछ पूछना है? Quickly, I'll show the same thing one more time with a standing mirror. This is a standing mirror. This is zone A
This is zone B. Can you tell me which is the real world? तुम कहाँ खड़े रहोगे, ए में कि बी में? जोन ए। जोन ए, क्योंकि ये जो डेट 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 करते हैं वो नकली जोन होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, मिरर के अंदर होता है. So this is the real world. This is the virtual world. Virtual आजकल बहुत, तुमने वो VR and basically video game is a virtual world. PUBG में तुम सच में वेपन लेके कूद नहीं पड़ते हो, लेकिन वो एक वर्चुअल दुनिया है, नकली दुनिया. अब रियल वर्ल्ड में तुम खड़े हो, और तुम मिरर के सामने देख रहे हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा. बट कैसे? उसका एक सिंपल एग्जाम्पल, सिर के टॉप पे से 2 रे निकलते हैं, एक इधर टकराता है तो वह ऐसे बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये नॉर्मल भी बता देते हैं, इमेजिनरी लाइन, एंगल सेम है अप्रोक्सीमेटली एक्सेट्रा. और एक दूसरा रे निकालते हैं कमर से, और वो कुछ ऐसे बाहर निकलता है. दिस इज द नॉर्मल. ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, और रिफ्लेक्टेड रेज को उल्टा खींचो. ये ब्लू वाले को मैं उल्टा खींच रहा हूं, और ये रेड वाले को मैं उल्टा खींच रहा हूं. तो रेड कमर से निकला था, तो यहां पे कमर बनेगी तुम्हारी, और ब्लू का उल्टा पे सिर बनेगा. So your entire body is throwing rays on the mirror. All those rays are reflected back, but your eyes are foolish. वो उस रेस को पीछे इमेजिन करती है और तुमको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है. Any questions? Then ask now about anything. No? Good. So this is where we stop. और क्विज में मैं बेसिक चीज़ें पूछूंगा, and in next lecture we'll finish this chapter. So quiz tomorrow at 5 o'clock after Kamini ma'am's lecture.